Think about it. Bollywood and food. इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. Be it food, be it movies. जब तक उन्हें emotions, especially प्यार से garnish नहीं किया जाता, तब तक उनमें मज़ा नहीं आता. No wonder food and Bollywood are the most trending topics in my life, and I'm sure in your life too. Hi, मैं हूँ शेफ शिप्रा खन्ना and I'm here with a brand new show जहाँ होंगे Bollywood superstars, उनके साथ चटपटे chats and of course loads of delicious delicacies. So welcome to 9XM StarTruck, your BFF, best of films and food. The first guest on my 9XM StarTruck is someone जो जिंदगी खुलकर जीते हैं, वो भी king size. He is someone who started his career in Bollywood from scratch, from literally zero. The real life story of Bollywood's true zero to hero. I'm delighted to welcome the Badshah of Bollywood, the one and only Shahrukh Khan, or shall we say, Baua Singh. Welcome Shahrukh, I'm so excited. My first episode I'm shooting with you. So I want to know, how do you find my 9XM StarTruck? I think it's awesome. I love the color, I love all the implements in it, and thank you for having me on your show, Shipra. Thank you, it's a pleasure. I of late got to know that you love coffee and you have a lot of coffee the entire day. So please tell me about it. You know, Shipra, when I was young, I used to study at nights because, you know, when you had exams and stuff. And I remember my mother used to make that time, it was Eagle vacuum flask thermos. So she would just make a thermos full of coffee and leave it for me, so that I could keep on drinking and, studying. I was never too much of a tea drinker, though I'm from Delhi and people used to drink tea. I have a very simple coffee habit. I used to have some very elaborate machines, but now I just have an espresso. Yeah, I think they've the cracked it the best, Yeah. So talking about your mother, tell me about that one dish, that you can never forget. My mother and father both are great cooks. My yes. father was from Peshawar, so he used to cook the specifically Pathani food, Peshawari food. And my mother was from Hyderabad. Okay. So she used to cook all the Hyderabadi stuff. So of course the biryani. Nobody could cook biryani like her. And nice thing was she could mash up anything with anything. And so could my father. So there was no dish that specifically, of course the katti dal was fantastic, and even just the dal chawal they made was fantastic. But they could just take on everything and make some very interesting food out of all the foods that were available in the house. Oh, fantastic. So you come from a foodie family and your father had a restaurant in Delhi. Yeah, very foodie, because even my mother's side, now in Bangalore. Also we are Muslims, so this whole pakwan thing, and food is served, and everybody in our house, everybody loved serving food. And we were not very well-to-do, so it wasn't like it was elaborate, but it was simple food. But food was something which we were taught by our parents, by my mom and my dad, that you should serve to everyone. And then we had restaurants and small restaurants, not really big restaurants, but and my mom and dad were so good that if the chef ran away, which normally they do, if they're not happy, so they could cook whatever in the restaurant menu also. Not all chefs run away. No. This one is right here. But that's amazing. So you come from a foodie family, but are you a foodie? Have you been a foodie in college or school? I think it is a little psychological for me that my mom used to feed me till I was 25, till she passed away, with her own hands, the way she used to mix the dal chawal with papad and pyaz and everything. So I think once they kind of passed away, I lost interest in food. I guess I'm so used to eating the food my parents used to cook. I'm not saying the other food is not nice. I think it's very tasty. The one other thing that I believe in is khana kabhi kharab nahi hota. So I never took on to any kind of food, because I'm not going to say I missed that food, but I just lost interest in food. So I can have anything. And as a matter of fact, I believe I'm the perfect foodie because I don't have a choice. You can give me anything and I'll be happy with the food. तो आप ये कहना चाह रहे हैं, you don't live to eat, you eat to live. ऐसा नहीं है. मेरे जो आसपास लोग हैं घर में
मैं बच्चों के साथ जाऊँगा तो पिज़्ज़ा खा लूँगा। माई वाइफ जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उसका इंटरेस्ट मेरे साथ ये था कि घर में जब बटर चिकन नान बची हुई होती थी तो वो सुबह वो आके खा लेती थी, तो दैट्स हाउ रोमांस स्टार्टेड। बट आई लाइक गुड फूड, ऐसा नहीं है, बट मैं स्पेसिफिकली ऐसा नहीं, जैसे मुझे छोले भटूरे दिल्ली के बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली लैंड करते ही छोला भटूरा मांगूंगा। होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर भी अच्छा है। मैं रेस्टोरेंट भी नहीं जाता ज़्यादा इसी वजह से, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता। तो मैं रेस्टोरेंट में जाके सेफली कोई एक चिकन जो नॉर्मल होता है, तंदूरी चिकन और ग्रिल्ड चिकन, और मैं घर में भी वही खाता हूँ। सो आई एम हैप्पी विद एनी फूड. Okay, so talking about Gauri, I mean, your romance is the most talked about. And, when you went for your first date with her, do you remember where did you take her to eat and what was that you served her or cooked for her perhaps? I think दिल्ली में एक जगह थी, अब पता नहीं मुझे है या नहीं, निरुलाज. अभी भी है. हाँ, जैसे फास्ट फूड जहाँ बनते हैं, तो आई थिंक वहाँ पे हम गए थे. निरुलाज में वैसे मशीन होती थी, एक स्लश, ऑरेंज स्लश ऐसा कुछ बोलते थे. स्लश, आई नो. तो वो ऑरेंज स्लश था, वो पिया था. तो आपकी चाइल्डहुड फूड मेमोरीज? मैं सेंट कोलंबस में पढ़ता था, तो वहाँ पे एक कैंटीन थी. तो बाहर के खाने में वो कैंटीन में कुलचे छोले मिलते थे. वो छोले भटूरे से अलग होता है, ऐसा पैक्ड सा होता था, बहुत टेस्टी होता था और बहुत सस्ता था तब. और तो वो हम खाते थे. एक कनॉट प्लेस में जगह थी, चिकन रोल होता था. इट्स राउंड थिंग, आई डोंट नो बनता है कि नहीं बनता है. और डिपॉल्स करके एक जगह थी कनॉट प्लेस में, वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती थी, बड़ी फेमस थी वहाँ की. हम फिर साउथ दिल्ली में थे तो एवरग्रीन करके है, तो वहाँ के छोले भटूरे, जलेबी, और वहीं पे बाहर तलते रहते हैं वो. इवन राजेंद्र नगर में शंकर रोड मार्केट के ऊपर मैं उनका नाम भूल गया, पेशावरी के हलवाई ऐसा नाम था. तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पकौड़े और ऐसे छोटे वाली, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड, बट दे टेस्ट लाइक पकौड़ास. एंड समोसे, दीज आर द थिंग्स आई रिमेंबर जो मैंने बचपन में हम लोग खाना खाते थे. तो जब कॉलेज डेज में जब आपके लिमिटेड पॉकेट मनी होता है, सो व्हाट वाज द काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड यू यूज्ड टू हैव? ब्रेड पकौड़ा. ऐसा वही कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा मिलता था लोहे के टेबल पे. और चाय साथ में. तो कॉफ़ी नहीं थी वहाँ पे कॉलेज में. हंसराज कॉलेज में था मैं, तो आई थिंक वो ब्रेड पकौड़ा बड़ा फेमस होता था एक चटनी के साथ हंसराज कॉलेज का. तो अभी आप डू लाइक पकौड़ाज एंड समोसास के अभी आप एकदम यू जस्ट मूव्ड अवे फ्रॉम इट एंड यू आर लाइक नो, आई एम ऑन अ डाइट? I'm never on a diet, even when I work out actually, because मेरा खाने का सिस्टम बहुत अच्छा है. मैं दिन में एक बार खाता हूँ, फिर अगले दिन खाता हूँ. तो मैं 12-16 घंटे में सिर्फ 2 बार खाता हूँ. और मैं बीच में कुछ नहीं खाता. मेरा डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मेरी आदत वैसी हो गई. सो मैं खा लेता हूँ, मुझे जो दे दिया जाए उस वक्त. लेकिन ऐसा जैसे मैंने आपको बताया, मैं घर में आऊँ और बारिश हो रही है और मैं कहूँ पकौड़े तलो, तो ऐसा नहीं करता हूँ. बट अभी मैं जाऊँगा, मेरे डायरेक्टर हैं आनंद राय इस फिल्म के, ज़ीरो के. वो बहुत खाने को पसंद करते हैं. अभी हम मीटिंग करेंगे तो खाना कुछ लेकर ही आएंगे साथ में. हमने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं आपके ज़ीरो के सेट पे से, और उसमें हमें पता चला कि जो डायरेक्टर साहब हैं ये आनंद राय जी, सो यू वर रियली ट्रबलिंग हिम टेकिंग इन अकाउंट हिज फूड हैबिट्स. ये आनंद सर इज़ अ फूडी. एक्चुअली आप कभी आपको मौका मिले, वो कोई फिल्म कर रहे हो और आप उनके साथ इंटरव्यू करो, तो आपको बहुत अच्छी बातें मिलेंगी खाने के बारे में. वो हो सकता है यहाँ पे बनाने भी लग जाए. उनको खाने के बारे में बहुत दिलचस्पी भी है, शौक भी है, और उनको पता भी है कि इंडिया के अंदर सबसे अच्छा खाना कहाँ कहाँ मिलता है. और इस फिल्म के साथ हमने काफ़ी ट्रैवल किया. हम दुबई में भी शूटिंग की, अमेरिका में भी शूटिंग की. और हम लोगों को तो जैसे हम अमेरिका गए तो 2-4 रेस्टोरेंट फ़ोन करके वो जो ऐप्स होती हैं उससे पता कर लो. आनंद सर दुनिया के किसी कोने में भी चल जाए, वहाँ का एक कोई लोकल रेस्टोरेंट ढूंढ ही लेते हैं खुद ब खुद. और फिर एड्रेस बता के यहाँ चलते हैं. एंड अमूमन वो जो भी खाने की जगह चूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छी जगहें चूज़ करते हैं. और उनको खाने का बहुत शौक है. सेट के ऊपर भी सीन डिस्कस होने से ज़्यादा खाना डिस्कस होता है कि लंच कब आएगा, ब्रेकफास्ट कब आएगा. अगर हम कभी कहीं कांदीवली या कोई ऐसे एरिया में जो स्टूडियो में नहीं है, तो वहाँ की भी स्पेशलिटी उन्हें मालूम है. हम एक बार वाशी में शूट कर रहे थे, तो हाईवे से उनको एक ढाबा भी मालूम है जहाँ पे बेस्ट किस्म का कुछ खाना मिलता है. तो वहाँ पे रोक के खाएंगे, गाड़ी में ले जाएंगे. या तो मैं उनको बहुत तंग करता था सेट के ऊपर, क्योंकि मैं उनको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे, आप डायरेक्टर कम हो, हलवाई ज़्यादा. That's quite a statement. But बात करते हैं आपके मूवी की. बउआ सिंह काफ़ी चटोरा है. इस फिल्म में भी एक सीन आता है जिसके अंदर वो बड़े इंपॉर्टेंट जगह पर वो लड़की से पूछता है समोसा खाओगी. तो उसको वो मैंने आनंद सर को ट्रिब्यूट दिया है पूरी पिक्चर का, क्योंकि उनको समोसे बहुत अच्छे लगते हैं. आई नेवर थॉट व्हाट काइंड ऑफ फूड ही वुड लाइक, बट या ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन हु वुड टेक अ गर्ल आउट फॉर अ डेट टू अ ढाबा एंड रियली एंजॉय द फूड. या सो शाहरुख, मैंने आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाई है.
और वो है चिकन टिक्का बुरीतो, जिसका मैंने नाम रखा है बउआ स्टाइल बुरीतो। Oh, thank you. It's very kind. So, would you like to taste it now? Okay, thank you. Here you are. It's very tasty. Thank you. It's really nice. So, there's a quiz on it. So, the quiz is that you have to identify 5 ingredients from these bauwa style burritos. So will you give me a choice because I may not know the names? Yes. I think. Maida. Yeah, there's maida in this. Garam masala. Yeah, there's garam masala. Sour cream. Is this sour cream? No. No? No. Right, I wouldn't know. Okay. No. Guacamole. Guacamole. मुझे इसका टेस्ट मुझे देखना पड़ेगा यार, वो उसका ना डिजाइन कैसा होता है। अब आप लोगों ने इसको मैश किया होगा तो पता नहीं। No, I don't know. I can't tell. Okay, and But I see rice. Is there rice in this? Yes. Yeah, rice. I know. And Chicken? yes. Okay. And lettuce. Yes. Okay. So I got the 5 ingredients. That was a smart move. तो आपको ये कैसी feel आई burrito खा के? There's a little Indianness to this burrito, so I guess क्योंकि बउआ स्टाइल है, हाँ जी. तो थोड़ा सा उसमें Indian You style got है इसके it अंदर. absolutely right. Bang on. I'm really surprised. आप इतने बड़े foodie भी नहीं हैं. उसके बावजूद आपने बहुत smartly इसमें से ingredients निकाल दिए. तो ये तो था हमारा sizzling starter. और अब मेरे पास एक मज़ेदार मेन कोर्स है. But before that, don't you want to know the Bauwa style burrito recipe? Well, check it out. Hello and welcome to my 9XM StarTruck. पहली रेसिपी है a Mexican dish burrito. So let's get started. सबसे पहले हम एक टोर्टिया लेंगे. मैं टॉस करूंगी राइस को एक पैन के अंदर. बुरीतोस काफ़ी तरीके के होते हैं, लेकिन मैं अपने स्टाइल का बुरीतो बना रही हूँ और इसके अंदर एक इंडियन ट्विस्ट भी दे रही हूँ. तेल यहाँ पे गरम हो गया है. अब मैं इसके अंदर पेपरिका राइस डाल रही हूँ. राइस को अच्छे से टॉस करेंगे. अब इसको टोर्टिया के ऊपर डालेंगे. थोड़ी सी स्मोक स्वीट पेपरिका. अब इसके अंदर ये रेड एंड येलो पेपर्स, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. ये है sour cream. So now going to add some boiled chicken to it. Here goes my twist and that is garam masala. A perfect fusion. दोनों edges को हम fold करेंगे. थोड़े से माइक्रो ग्रीन्स के साथ गार्निश कीजिए और ये लीजिए हमारा बउआ स्टाइल बुरीतो तैयार है. बच्चों के लिए आपने कभी कुक करा है या संडे ब्रंच और समथिंग लाइक दैट यू वुड लव टू डू? I'd love to do it. मैं जब सीख रहा था 2 साल पहले, मैंने ट्राई किया था. चिपक गया था सब ऐसा, स्टिकी सा हो गया था, तो मैंने अपने पूरे बेचारे बच्चों को खिलाया. उनको खाना पड़ता ज़बरदस्ती. बट मुझे अभी कुछ इतना याद नहीं है. मैं वो YouTube से कॉपी करता था देख के कि अच्छा इस पर एक रेसिपी है, 1-2